Yes, children. So, meter bridge is the practical application of Wheatstone bridge. So, in Wheatstone bridge, what we have studied? We have studied that whenever in the vertical arm there is no current flowing, whenever the galvanometer shows null deflection, then P upon Q is equals to R upon S, or P upon R is equals to Q by S. This is called as balanced condition of Wheatstone bridge. If we know any 3 resistances out of 4 resistances, we can find the unknown one. So meter bridge is an application in which 3 resistances will be known to you and you are supposed to find the unknown resistance. Same experiment in theory is there in your practicals also. So whatever explanation I am giving you now is same for practicals. There will be no separate explanation for practical. Today we are going to conduct the practical and same explanation will follow there. So meter bridge is very scoring. It gives you marks in practicals as well as in theory. The topic is meant for 3 marks. If it comes along with a numerical based on this, then it becomes a very good 5-mark question. Very easy to score 5 marks in such question. Right? So first of all, we'll understand the construction part of the meter bridge. I hope the board is visible to you. Yes. First of all, we will understand the construction part of the Wheatstone meter bridge. Right? So what is a meter bridge? Meter bridge is a practical application of Wheatstone bridge. See, the examiner may ask you in Viva, on what principle does meter bridge work? So you simply have to answer. The principle of meter bridge is Wheatstone bridge, which says that P upon Q is equals to R by S, or R1 upon R2 is equals to R3 by R4. When we name these 4 resistances in terms of R, middle arm we are not taking, so R1 upon R2 is equals to R3 by R4. In some reference book it is also given in this term, R1 by R2 is equals to R3 by R4 when middle arm galvanometer shows null deflection, that is Ig is 0, then this upon this is equals to this upon this. That is what we have studied. So meter bridge contain of a wooden board, right? एक wooden board होता है of almost 1 feet width and the length is more than 1 meter. On that wooden board we take L shape of copper strips. L shape के copper strips लेते हैं. There are 3 copper strips. One L shape thick copper strips on one side, one L shape thick copper strip on other side, and in between there is a copper strip which has screws, different screws. Screw क्यों दिए होते हैं? एक screw यहाँ दिया होगा, एक screw यहाँ पे 3 screws will be there. Again 1 screw will be here and 1 screw will be here. These L-shaped screws we will attach a wire, right? We generally take मैग्नेन और कॉन्स्टेंटिन वायर, किसी भी अच्छे एलॉय का वायर हम लेते हैं, सो दैट इट कंडक्ट्स. सो इन स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिस वायर AB इज मेड अप ऑफ मैग्नेन. मैग्नेन इज एन एलॉय. सो ये जो AB वायर हमने लिया है, दिस वायर AB हैज 1 मीटर लेंथ. इसका लेंथ कितना होता है? 1 मीटर. और उसके जस्ट नीचे एक स्केल लगा होता है, मीटर स्केल, द वन विच यू हैव सीन इन योर फिजिक्स लैब. सो ये मीटर स्केल जो होता है, वुडन स्केल फिट होता है वायर के जस्ट नीचे, राइट? सो फर्स्ट स्क्रू जो होता है, फर्स्ट स्क्रू में एक गैप होता है. ये स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, स्ट्रिप 3 दे आर सम डिस्टेंस अपार्ट, जुड़ी नहीं होती. देयर इज सम गैप एंड जनरली देयर आर 2 गैप्स. एक गैप यहाँ पे होगा, आई विल राइट डाउन हियर गैप 1 एंड गैप 2. सो इन फर्स्ट गैप, जहां पे भी फर्स्ट गैप होता है वहां पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं. नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस बॉक्स? बिकॉज यू हैव नॉट यूज्ड द रेजिस्टेंस बॉक्स अर्लियर. रेजिस्टेंस बॉक्स इज एन अरेंजमेंट, रेजिस्टेंस बॉक्स इन विच देर आर सो, दिस इज द टॉप व्यू, ऐसा दिखता है वो. इन रेजिस्टेंस बॉक्स वी हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेज एंड 2 स्क्रूज. ये यहाँ पे और यहाँ पे 2 स्क्रू होते हैं इसमें, राइट? यहाँ पे नंबर्स लिखे तो 1, 2, 5, 10, 20, 100, 5000, 7000, 10,000 and infinity, right? So this is how a resistance box look like. Whenever you are putting the plug, आपने ये वाला 2 वाला ये जो की है टॉप से, इसे बहुत सारे कीज होते हैं. There are so many keys. Every resistance has a gap. अगर हम उसके बीच में से these are 2 resistances, right, and they have a gap. If I am putting a plug in between, ये 2 resistance है, इनके बीच में गैप है.
अभी मैंने क्या किया, इनके बीच में एक की लगा दिया, सो इसका कनेक्शन इससे हो गया, एंड ये की किसका होता है, ब्रास का होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर। सो यहां से जाने वाला करंट की के थ्रू नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा। अगर मैंने इनके बीच में कुछ भी नहीं लगाया तो उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा रेजिस्टेंस बॉक्स में। सपोज मैंने ये 2 वाला की हटा दिया, जब मैंने 2 वाला की हटा दिया तो ये जो गैप था जहां की लगाने से करंट पास हो रहा था, जैसे ही मैंने ये हटाया तो ये क्या हुआ, ये ओपन गैप हो गया, मतलब ये उतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट में। तो अगर आपने 2 वाला की हटा दिया इट मीन्स 2 रेजिस्टेंसेस ऑफर्ड। आपने 100 हटा दिया तो 100 रेजिस्टेंसेस ऑफर्ड। आपने इनफाइनाइट, यू कैन ऑल्सो ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, करंट फ्लो ही नहीं हो, हम इस तरह से यूज करें, देन यू कैन ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो 1 2 फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वी ऑफर 5 to 10। 5 से कम पे भी रीडिंग ठीक से नहीं आता और 10 से ज्यादा पे भी रीडिंग ठीक नहीं आता। तो हम अगर 4 रीडिंग्स लेते हैं तो हम लेंगे 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, और 5 to 10 कोई भी आप रेजिस्टेंस ले सकते हो। सो वट एवर यू विल टेक आउट, समझो हमने 10 ओम वाला की हटाया तो 10 ओम इज ऑफर्ड इन द सर्किट, मतलब आप उस सर्किट को कितना रेजिस्टेंस दे रहे हो, यू आर गिविंग 10 ओम्स। सो दैट इज हाउ रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज्ड इन द फर्स्ट गैप। दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस, प्लीज मेक अ पॉइंट। हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस है जिसकी हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। सो ये क्या है, गैप 1 में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम अपनी मर्जी से एज पर आवर ओन विश वी विल ऑफर द रेजिस्टेंस। 2 ओम किया, 5 ओम किया, 7 ओम किया, राइट। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड विच इज अ नोन रेजिस्टेंस इन गैप 1। अभी आगे चलते हैं, सेकेंड स्ट्रिप में 3 स्क्रूज हैं। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 स्क्रू होते हैं, यहां से 2 वायर कनेक्ट होंगे और वो दोनों वायर, एक वायर यहां जुड़ेगा और एक वायर यहां पे कनेक्ट होगा। गैप 1 फिल्ड। इस स्ट्रिप के ऊपर 3 स्क्रूज हैं, बीच वाले स्क्रू की बात हम बाद में करेंगे। जो लास्ट वाला स्क्रू है, ये वाला स्क्रू लास्ट वाले एल शेप कॉपर स्ट्रिप से जुड़ा होगा, एंड इन एग्जाम यू विल गेट अ वायर, से दिस इज अ वायर, इसका रेजिस्टेंस मुझे बताओ। Our aim in the experiment is to find the unknown resistance of the given wire. So we may give you 15 सेंटीमीटर का वायर है, इसका मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, या 20 सेंटीमीटर का एक वायर काट के लिए इस वायर का रेजिस्टेंस आई वांट टू नो। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द वायर whose resistance we are supposed to find. So actually what is this, this is the unknown resistance। S क्या है, S का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक नोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस, राइट। अब ये जो मिडिल वाला स्क्रू है, यहां से हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर से करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, और गैल्वेनोमीटर से होते हुए हम एक जॉकी जोड़ेंगे। जॉकी, राइट, व्हाट इज जॉकी? जॉकी इज पेन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ही दिखता है जॉकी। ऊपर उसमें एबोनाइट होता है, एबोनाइट ये द सेम विच वी यूज इन द इलेक्ट्रिकल स्विचेस। एबोनाइट इज अ गुड इंसुलेटर। अंदर एक मेटल का रॉड होता है और आगे एक शार्प एज होता है, पेन की तरह होता है, लेकिन पेन का ये जैसे मार्कर का एज है वो थोड़ा बड़ा एज होता है, मेटल एज होता है। तो अगर हम यहाँ पे जॉकी को टच करा रहे हैं तो ये जो करंट आ रहा था वो जॉकी के थ्रू इस, मतलब करंट वॉज फ्लोइंग इन दिस वे, हियर 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 एंड हियर। इफ वी आर कनेक्टिंग अ जॉकी इन बिटवीन, जॉकी इज अ स्लाइडर। जॉकी एक ऐसी चीज है जिसको हम वायर पे जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इट हैज अ मेटेलिक कॉन्टेक्ट। ऊपर एक एबोनाइट का इंसुलेटर होता है और अंदर से एक रॉड होता है, और जैसे जैसे आप मूव करते हो वायर पे वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर आपको बताएगा इतना रेजिस्टेंस हो गया तो इतना करंट, इतना रेजिस्टेंस हो गया तो इतना करंट, राइट। सो जॉकी इज अ स्लाइडर विच वी मूव, इट इज अ काइंड ऑफ स्लाइडर विद मेटेलिक कॉन्टेक्ट। जैसे जैसे हम वायर के ऊपर मूव करते हैं वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमने एक जॉकी लगा दिया, और जॉकी को हम बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करते वायर पे, राइट। इफ वी आर प्रेसिंग इट सो मच द एरिया ऑफ द वायर में चेंज, एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर समहाउ हमने जॉकी को ज्यादा प्रेस किया तो एरिया ऑफ वायर कुड चेंज विच में अफेक्ट द रेजिस्टेंस, राइट। सो ये जॉकी हम यहाँ पे लगाते हैं अननोन, एंड यहाँ से हमने वायर भी। अभी करंट कैसे पास होगा, तो ये जो पूरा मीटर ब्रिज होता है इसके दोनों एंड्स ए और बी, जैसे हमने इसमें क्या किया था, ये ए और ये बी हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो स्क्रू है बैटरी, एंड द अदर साइड ऑल्सो वी कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ की, एंड द मोमेंट वी स्विच ऑन द की, ये मैंने की को ऑन कर दिया।
right? The current will start flowing. Clear? What are the components? Battery, source of current. Resistance box, known resistance. Jockey, which checks the current in the circuit. Thick copper strips. Thick copper से अच्छा हमने ये thick क्यों लिए हैं? We have taken thick copper strips. Area more means resistance less. हमें किसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है? हमें ये वाले अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है. अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वी हैव टू फाइंड. सो यहाँ पे जब करंट पास हो रहा है तो पैसेज ऑफ करंट में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट, मतलब जब हम करंट पास करें तो कनेक्शंस में ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस की करंट तेजी से फ्लो हो, राइट? सो हम ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स लेते हैं, इनका एरिया ज्यादा होता है ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, कम. कनेक्शंस में हमारा रेजिस्टेंस या करंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट? सो ये रेजिस्टेंस बॉक्स नोन, अननोन. द मोमेंट वी मे कॉल द कनेक्शंस, हाउ टू चेक कि हमारे कनेक्शंस ठीक है या नहीं. चेक करने के लिए वी टेक द जॉकी एंड वी टच इट टू द लेफ्ट हैंड. हमने यहाँ पे टच करते हैं जॉकी, galvanometer current on right hand side. We touch jockey on this side, galvanometer current on left hand side. अगर हमें अपने ये चेक करना है कि पूरे मीटर ब्रिज में हमारे कनेक्शंस ठीक है या नहीं, पूरा कनेक्शंस करने के बाद जैसे ही हम की इंसर्ट करते हैं, की इंसर्ट करते ही गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी कनेक्टेड है, जॉकी को यहाँ टच करेंगे, जॉकी को यहाँ टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर शुड शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन. मतलब करंट दोनों डायरेक्शन में फुल फ्लो हो रहा है. अगर एक ही साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है या डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो समथिंग रॉन्गली यू हैव कनेक्टेड. आई रिपीट अगेन, कनेक्शंस क्या है? पॉजिटिव एंड हियर, नेगेटिव एंड देयर विद द हेल्प ऑफ की. की इज लाइक स्विच. फर्स्ट गैप में नोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स. सेकेंड गैप में जो वायर आपको मिला है जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो वाला वायर. मिडिल वाले स्क्रू में गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी. जॉकी को यहाँ टच करेंगे और लास्ट एंड पे टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट एंड में टच करने पे ऐसे जाएगा पूरा राइट में, और राइट एंड में टच करने पे पूरा लेफ्ट में जाएगा. मतलब ऐसे घूम रहा है गैल्वेनोमीटर का की. इट मीन्स योर कनेक्शंस आर राइट. जब ऐसे घूम रहा है ये निडल गैल्वेनोमीटर का, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो नल डिफ्लेक्शन भी दिखाएगा, राइट? द मोमेंट इट शोज नल डिफ्लेक्शन, जैसे ही वो नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तुम समझ जाओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन आ गया. हाउ टू चेक दैट बैलेंसिंग कंडीशन? रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L. जिस लेंथ पे उसने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, समझो ये 40 है, आपने शुरू किया 10, 20, 30, 40, अरे 40 आती गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया. इसका मतलब लेंथ L का रेजिस्टेंस is balancing the resistance of resistance box, and remaining length का resistance 100 minus L का resistance will balance the unknown. So ये known, ये known, ये known, and you can easily find the resistance of length of resistance of unknown wire S. That is how it goes. Let resistance per unit length is R. स्मॉल r हमने रेजिस्टेंस मान लिया. सपोज किसी भी गिवन मीटर ब्रिज के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R मीन्स हमने लिया कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 2 ओम. 2 ओम पर सेंटीमीटर हमें पता है. वो वायर मैग्नेट वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लिख के आता है, वट एवर यू आर यूजिंग, वट एवर वायर. सो दिस इज रेजिस्टेंस नोन. मैंने बोला कि रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम पर सेंटीमीटर, तो 100 ओम का कितना होगा? 200. 40 का कितना हो जाएगा? 40 इंटू 2. इसका मतलब इतने लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू L. बचे हुए लेंथ का कितना है? 60 इंटू 2. टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 200. सो लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज R, राइट? व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज null deflection, तो Ig becomes 0. Ig becomes 0 means known resistance R upon resistance of length L, R into L is equals to unknown S upon resistance of second length. अगर ये 40 है तो बचा हुआ लेंथ कितना होगा? 100 minus 40, because the length of the wire is 100 centimeter. So this is R into 100 minus L. Cancelled.
R upon L is equals to S upon 100 minus L. What is the unknown resistance? 100 minus L upon L into R. That is how we find the unknown resistance in a meter bridge. क्या चाहिए आपको? आपको सिर्फ लेंथ चाहिए. सब कुछ कनेक्ट करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद जॉकी को मूव कराना शुरू करेंगे. 5 ओम जॉकी को मूव कराया. 40 60 अपॉन 40 इंटू 5. फर्स्ट आंसर. इसको चेंज कर दिया. 10 ओम. अभी ये लेंथ आया 50 पे. 10 इंटू 50 अपॉन 50. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, fifth. Take 4 to 5 readings. After taking 4 to 5 readings for different values from the resistance box, you will get 5 values of unknown resistance. How to check what is the final value? Take mean of all of them, and that is how we find the unknown resistance using a known 3 values of known resistance in the meter bridge. So hence meter bridge is a practical application of Wheatstone bridge in which we can find the unknown resistances with the help of these two. These two can be changed by offering different resistances from the resistance box. I hope it is clear to you.